कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ईटिंग टुगेदर। ओके, साथ में जब हम खाना खाते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स होते हैं जब हम खाना खाते हैं साथ में? डू यू लाइक ईटिंग टुगेदर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स? सो इन दिस चैप्टर we'll know about eating together, what are special foods that we eat on these moments, community eating, okay, eating together during midday meal, so eating together during lunch break, eating together in hostel or boarding school, and food for different festivals. Okay, so do you enjoy eating together with your family members or friends? What a fun it is to sit together, share our food with your friends and discuss the taste of dishes, right? Eating together brings us closer to one another. आप लोग भी अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ साथ में बैठ के खाना खाते होंगे, राइट? और हमें भी एक दूसरे का खाना भी शेयर करते हैं, बातें करते हैं, राइट? सो एक काफ़ी एक फन और टॉकेटिव, एक एक्सचेंज वाली एक्टिविटी है, राइट? सो ईटिंग टुगेदर, we eat delicious food at a number of places and on special occasions. These special days are family celebrations like anniversaries and birthdays, community celebrations like festivals, or outing like picnics. तो जो साथ में खाना खाना है, right? When we eat together, so there are some special days, जैसे कि कभी anniversary है, birthday है, right? या कोई festival है, ये ऐसे कुछ days हैं जब हम साथ में खाना खाते हैं. So what are the special foods that are prepared on these days? Special food is prepared according to the occasions, right? It may be exotic and varied in a marriage party, while it may be very simple and limited on a sorrowful occasion. The type of food depends on the culture, economic status and religion of people organizing it. We engage special cooks called halwai to make special food. He prepares the food in large vessels. The food is placed in serving bowls and served in a good crockery. We all enjoy such fest. Eating on such occasions brings new joy and happiness in our lives. तो डिपेंड करता है कौन सा ओकेजन है. लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट देयर इज सम पूजा, ठीक है, या किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी है, मैरिज है, तो ये डिफरेंट ओकेजन्स है, या किसी का डेथ है, तो डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट टाइप के खाना प्रिपेयर करते हैं, राइट? एंड हु प्रिपेयर इट? द हलवाई. ओके, सो डिपेंड कर रहा है कि कल्चर क्या है, कौन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. लेट्स से नॉर्थ इंडिया में कुछ और खाया जाता है ना, साउथ इंडिया में कुछ और खाया जाता है, ईस्ट इंडिया में कुछ और खाया जाता है, वेस्ट में कुछ, डिपेंडिंग अपॉन द पीपल, द रिलीजन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस, राइट? नाउ लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट द कम्युनिटी ईटिंग. ठीक है, कम्युनिटी मतलब क्या? बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, एक साथ रहते हैं आसपास, उसको एक हम कम्युनिटी बोल सकते हैं जब वो साथ में खाना खाते हैं. सो ऑन सेवरल रिलीजियस एक्टिव फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी मीटिंग्स पीपल ईट कलेक्टिवली. इट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी फेस्ट और अ प्रीति भोज. It teaches us about equality and the importance of community service. In the case of community gathering, food is made in a large and common kitchens. तो कम्युनिटी फीस्ट में क्या होता है? बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो साथ में बातचीत करते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कस भी करते हैं और फिर साथ में भोजन करते हैं, राइट? तो इससे हम लोग क्या, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से बातचीत और साथ ही साथ में खाना प्रिपेयर करना भी सीखते हैं, राइट? Now let's move to the next page. Langar is good example of a common kitchen. A langar is attached to every gurudwara. There are open air langar at the time of festivals and guru parbs. तो लंगर में क्या होता है? आपने देखा होगा, एक कॉमन किचन है, एक बहुत बड़ी सी किचन है जिसमें लंगर, खाना प्रिपेयर किया जाता है सबके लिए, राइट? Women play an important role in the preparation of langar. The children helps in serving food to the pangat. Everyone is welcome to share the food. No one is turned away. The food is served twice a day. Each week, a family or several families volunteer to provide and prepare the food. All the preparation, the cooking and the washing up is done by volunteers called sevadars. Caterers are not allowed. अब देखो लंगर में कितनी सारी चीज़ें हैं ना, खाना प्रिपेयर करना, फिर खाना सर्व करना, फिर वो जो डिशेस हैं उनको साफ़ करना, अब कौन खाना बनाएगा
और उसके लिए सब्जियां और जितने भी राशन है वो कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ लोग एक दूसरे के हेल्प से करते हैं, राइट? वो जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प से करते हैं. सो वुमेन खाने प्रिपेयर में हेल्प करती है लंगर का, राइट? बच्चे जो हैं वो जो पंगत होती है, राइट, जब लाइन में लोग खाने के लिए बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंगत. उनको हेल्प करते हैं सर्व करने में, राइट? कोई भी इंसान बचता नहीं है खाना खाने से, ठीक है, सबको खाना मिलता है. सो हर वीक एक फैमिली या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल वॉलंटियर करते हैं कि हम खाना बनाएंगे, हम उसको स्पॉन्सर करेंगे. और फिर सेवादार्स होते हैं जैसे जो वॉलंटियर करते हैं, अपनी स्व इच्छा से काम करते हैं साफ सफाई का. ऑल राइट. Do you know the langar was started by the first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji, to uphold the principles of equality between all the people who sit on the floor together to eat same simple food. So जो लंगर है ये किसने स्टार्ट किया था? जो फर्स्ट गुरु थे सिखों के, गुरु नानक देव जी ने, राइट? तो उनका प्रिंसिपल क्या था कि जो भी इंसान ज़मीन पे बैठ के खाना खाता है उससे क्या इक्वालिटी बढ़े, राइट? कि हम साथ में खाना खा रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं. You know, various charitable institutions and individuals organize community eating on a regular interval. Many temples also organize community eating called Bhandara during the festivals like Ram Navami. We can also see a large-scale community eating at many places, organized specially for poor. The main objective of serving this food is to increase love and affection among people. Community eating teaches us that we are a part of the society and helps in promoting the awareness about charity and equality. तो जैसे हमने लंगर की बात की वैसे ही और बहुत सारी क्या है इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई इंडिविजुअल हैं, जैसे एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, वो ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं कम्युनिटी ईटिंग, है ना. डिफरेंट जैसे कभी कभार रामनवमी है, ठीक है, दिवाली हो गई, या और भी बहुत सारे त्यौहार हैं. इनमें क्या किया जाता है कि जैसे कम्युनिटी ईटिंग भंडारा किया जाता है. इसको क्या बोलते हैं? भंडारा. ऑलराइट. इसमें पुअर्स के लिए या लोगों के लिए ओपन ईटिंग होती है कि आप आओ और खाना खाओ. ऑलराइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग अ मिड डे मील. अब मिड डे मील क्या होता है? वहाँ पे भी हम साथ में खाते हैं, राइट? So food is also eaten together as a midday meal in schools. This food is simple but nutritious as it is meant for students. The midday meal is free of cost. Many children in our country are not able to get even a full meal even a day. Many of them do not even go to school. Some years ago, the Supreme Court gave an important order that all government-run primary schools must provide the student fresh cooked food. It is the right of every children. Children eat healthy foods like idli, upma, bread, eggs, paratha, roti sabzi or juice. The menu card is displayed on the school notice board outside the principal's office, which tells what the children will get in their midday meal on each day of the week. On important days like Diwali or Independence Day, a special dish is served. So, community eating और कहाँ देखने को मिलती है? स्कूल्स में, ठीक है. कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे क्या है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मिड डे मील सर्व की जाती है. तो बच्चे खाने के उत्सुकता में कि खाना मिलेगा इसलिए वो क्या जाते हैं? स्कूल्स में जाते हैं, राइट? ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मिड डे मील्स. तो ये जो मील है वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है और इसमें डिफरेंट टाइप के खाने होते हैं जैसे कि, और सिंस ये बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है तो ये हेल्दी होती है, जैसे ब्रेड, उपमा, भी रोटी सब्जी. एक प्रॉपर मील जो होता है क्या किस दिन बनेगा पूरे वीक में, ये प्रिंसिपल्स ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे होता है. कुछ स्पेशल दिन होते हैं जैसे दिवाली है, इंडिपेंडेंस डे है ना, इस दिन स्पेशल डिश सर्व की जाती है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक. सो आपका जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है तब भी आप साथ में खाते हैं, राइट? So we have a lot of fun during the lunch break in our school because we all share our meals during lunch time. There is so much variety in food. We should share our meals. This brings us closer to our friends. और काम साथ में खाते हैं जब लंच ब्रेक होता है स्कूल्स में, राइट? आप एक टेबल पे सब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हो, शेयर करते हो, राइट? और ये क्या बढ़ाता है? आपकी दोस्ती बढ़ाता है, शेयर करना सिखाता है आपको, है ना. Then eating together in hostels or boarding schools.
और काम देखते हैं जब आप बड़े हो जाते हो तो हॉस्टल्स जाओगे, है ना, पढ़ने के लिए। लेट्स से कोई कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए जो आपके घर से दूर है, सो यू लिव इन हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल. Some students study in school where they live also. Such schools are called boarding schools. All the students eat food at a common place called mess. It is a big hall with many tables and chairs. Food is cooked there in a big kitchen. The children are provided fresh, properly cooked, hygienic food. They have fixed time for different meals. Mess boys serve food to all students and also wash the utensils. The mess is organized by mess contractor. The quality of food is checked by the hostel warden. Eating together helps the student to get to know each other and overcome the difficulties they face living away from their families. अब देखो, स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डे बोर्डिंग वाले होते हैं, राइट, जो वहीं पे रहते हैं और फिर स्कूल में भी पढ़ते हैं, ठीक है. ऐसी जगह पे जब एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे आप सब बैठ के स्टूडेंट्स खाना खाते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मेस, राइट. यहाँ पे क्या, चेयर्स, बड़ा सा हॉल होता है, चेयर टेबल होती है और एक बड़ा सा किचन है जहाँ पे सबके लिए खाना प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे लेट्स से अगर प्रॉपर 3 मील हैं तो उनका एक प्रॉपर फिक्स टाइम होगा कि इतने बजे से ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है. वहाँ पे फूड क्वालिटी चेक होती रहती है थ्रू हॉस्टल वार्डन, राइट. प्लेट्स हैं, प्लेट साफ करने के लिए कोई और है, खाना बनाने के लिए कोई और है, सो एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट रहता है, राइट. एंड बाय दिस eating together it helps you to face and overcome the difficulties. जब आप अपने फैमिली से दूर रहते हो तो आपको साथ में बैठ के खाना खिलाना, क्या आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, राइट. डू यू नो द कश्मीरी वेडिंग food consists of more than 30 dishes called wazwan. A special sweet dish named mujadan is served to the guest. कश्मीर में जब शादियाँ होती है तो वहाँ पे 30 से ज़्यादा डिशेस बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वज़वान, राइट. और एक स्पेशल स्वीट डिश है जो गेस्ट को सर्व की जाती है, उसको बोलते हैं मुजदान, राइट. नाउ लेट्स रीड अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फूड फॉर फेस्टिवल्स, राइट. सो देयर आर डिफरेंट foods which are prepared for different festivals. So it is said that in India a festival is celebrated almost every day of the year. Festivals serve to unite people from different backgrounds. The majority of festivals observed in India are related with particular dishes. Traditional recipes of India have their own importance. Let us see some of the famous foods for different festivals of India. अब इंडिया में बोला जाता है कि हर दिन एक क्या है, त्योहार है, ठीक है. और अभी हम देख रहे हैं हर त्योहार पे डिफरेंट फूड बनता है, राइट. तो अब हम देखते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से स्टेट वाइज कैसे डिफरेंट तरीके से फूड प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट फेस्टिवल्स पे. सो ऑन तीज घेवर इज प्रिपेयर्ड. ऑन क्रिसमस केक्स एंड कुकीज यू मस्ट हैव सीन इन द मार्केट. ईद में मटन एंड सेवई. गणेश चतुर्थी में लड्डू प्रिपेयर किए जाते हैं. ऑन होली गुजिया इज प्रिपेयर्ड. दुर्गा पूजा में रसगुल्ला प्रिपेयर किया जाता है. एंड ऑन दिवाली स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आर प्रिपेयर्ड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now let's summarize what we have learnt in this chapter so far. So eating together brings us closer to one another. We eat delicious food at a number of places and on special occasions. Langar and Bhandara are the community fests. In Langar, thousands of people of different religions and caste, rich and poor, all sit together on the floor and eat the same food at a time. Some years ago, the Supreme Court gave an important order that all government-run primary schools must provide the student fresh cooked food. This is called the midday meal. In boarding schools, all the students eat food at a common place called the mess. So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.